Now in detail we will study about measurement of mass, and along with we will also discuss the measurement of time as well. So when we talk about the mass measurement, first we will try to understand that what is the range. In physics, the range of mass is, or the order of mass which is measured in the physics is from 10 raised to power minus 30 kilogram to 10 raised to power 55 kilogram. Means this is the range which is measured into the mass, which is measured in physics. This is the smallest mass of the universe. What is this? It's a mass of electron. So we measures in the physics, we measures mass of electron, that is of order 10 raised to power minus 30 kilogram, to mass of the universe, that is of order 10 raised to power 55 kilogram. We do this. So this is the measurement of mass in physics. First we are going to understand that how long it is the range. ये बहुत बड़ा रेंज होता है कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर मास ऑफ यूनिवर्स तक इसमें मेजर करते हैं. इसका एसआई यूनिट आपको मालूम है कि मास का मैं पहले ही बता चुका हूँ. द एसआई यूनिट इज ऑलवेज किलोग्राम. So far we must knowing that what is the order of mass which we measure in physics, that is of 10 raised to power minus 13 kg to 10 raised to power 55 kg, where 10 raised to power minus 13 kg is the mass of electron and this is the mass of the universe. Its SI unit is kilogram. We all know it. So far we have understand. Second come, there are some offices, or you can say there are some institutions, or what it is called, there are some centers which are made for the purpose. One is BIMP. What is this? ये एक इंस्टीट्यूशन संस्था है जो पूरी दुनिया में मेजरमेंट चल रहा है मास का, उसके ऊपर निगरानी रखती है. सपोज करो कल को चाइनीज़ लोग बेईमानी पे उतर जाए, वो बोले हम तो इसको 1 किलो बोलेंगे, मतलब वो आधा किलो को 1 किलो बोलने लगे तो क्या करोगे आप? तो आप इसके पास जाओगे एंड यू विल कंप्लेन अबाउट देम दैट सर दीज पीपल्स आर सेइंग अबाउट 1 kg विच इज जस्ट इक्वल्स टू द हाफ kg बाय इंटरनेशनल नॉर्म्स. सो आप एक संस्था है ये आपकी जो इंटरनेशनली देखती है कि इन होल वर्ल्ड, सारी दुनिया में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनमें से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है. मास को 1 किलो जो अमेरिका में वही 1 किलो इंडिया में है कि नहीं, ठीक है, वही चाइना में है कि नहीं. तो इट इज़ ब्यूरो, B फॉर ब्यूरो, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मास एंड P फॉर आपके आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये आपका है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. सो ये इसका नाम है आपका BIPM. BIPM है, सॉरी, अभी रट्टा था ना इसलिए मुझे नहीं आता रट्टा. तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, which is called in short BIPM, which take care of. अब आप बोलोगे इससे हमको फिजिक्स में क्या लेना देना, मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, टेक्स्ट बुक में है तो आपको नॉलेज होना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बोला नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, बराबर, ये नॉलेज की बात है. तो मेजरमेंट ऑफ मास वी आर स्टडिंग इन डिटेल. तो फिजिक्स जो है विच मेजर्स द मास, रेंज ऑफ द मास विच वी मेजर द फिजिक्स इन फिजिक्स इज 10 raised to power minus 13 किलोग्राम 30 किलो kg to 10 raised to power 55 kg, where 10 raised to power 55 kg is the
mass of whole universe, and 10 raised to power minus 30 kg is the mass of electron. Second thing, SI unit is kilogram. To take care of some type of cheating, okay, should not happen in measurement of mass. That's why internationally we have set up an institution that is called the BIMP, Bureau of International Bureau of Weight and Measures, International Bureau of Weight and Measures, which take care about the cheating and the बाट जो वेट होते हैं ना, वेट जो बाट होता है, जैसे हमारा 1 किलो अमेरिका का 1 किलो के बराबर होना चाहिए, वो अगर मान लो 800 ग्राम को 1 किलो बोलेंगे तो फिर हम वहाँ शिकायत कर सकते हैं. वी विल कंप्लेन इन दिस इंस्टीट्यूशन. होप यू अंडरस्टैंड. तो ये टेक केयर करता है कि सब इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में सब मास का ऑर्डर बराबर इस संस्था के हिसाब से है कि नहीं. दूसरा हमारे इंडिया में भी है. इंडिया में जो है उसको नाम देते हैं NPL. NPL का फुल फॉर्म है आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली. इफ विद इन आवर कंट्री, in any state, if any shopkeeper or any merchant suppose is making some kind of cheating, doing some kind of cheating in trade, suppose लोगों को कम मेजर कर रहा है, उसने नकली बाट बनवा ली है लोहार के पास जाके, तो उसको जेल हो जाएगा. क्योंकि जब गवर्नमेंट आएगी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको चेक कर सकती है. दे कैन आस्क दैट व्हाई यू आर यूजिंग स्मॉल वेट्स. 1 किलो की जगह तो 800 ग्राम. तो कोई भी ये बाट वगैरह जो है, इसलिए गवर्नमेंट से ऑथोराइज जो डीलर्स होते हैं वही बना सकते हैं. आप और मैं बाट वगैरह को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल और नेशनल कंट्री की इमेज का सवाल है. तो हमारे कंट्री में विद इन कंट्री भी है वो इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है. यह संस्था भी केयर करती है इस बात का कि देश के अंदर विद इन द कंट्री, इन ऑल स्टेट्स, इन ऑल ट्रेड इज गोइंग इन अ proper way or not. Is this order of whatever is the measures of international measures, are they following the shopkeepers or not, or some shopkeepers are cheating or not. So this all the things is taken care by this institution, that is NPL. Okay, national physical laboratory. तो national, N for national, P for physical, L for laboratory, take care of this thing that everything is going smoothly or not. Now next we are going to discuss about that, as we were discussing the measurement of length, for different kind of ranges, what are the stuffs which we use. So when we will start from the very small mass, when we start with the very small mass, that is mass of, that is suppose mass, what is very small means what? Very small means mass of electron, mass of proton, mass of neutron, and so on. Means atomic mass, atomic size masses. So when, how can we measure it? Which cannot be seen by naked eyes, which cannot be caged by our hands. How can we measure? But it is measured by spectrograph. So as I discussed in the length, that very small length, this order of length is measured by this order of length is measured by this, that order of length is measured by this. Similarly here in the measurement of mass, very small masses are measured by mass spectrograph. I repeat, mass spectrograph. Mass spectrograph, we use this. Okay, so mass spectrograph, very small masses means masses, mass of electron, मास ऑफ प्रोटॉन, जो एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम बनता है, उनके मास को मेज़र करने के लिए हम जो है वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज़ करते हैं और उससे हम छोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं दुनिया के, उनका मास मेज़र करते हैं. और ठीक है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया. लेकिन मेज़र करने के बाद क्या नतीजा आया कि जो एटॉमिक सबसे पहला जो यूनिट होता है, मैंने आपको वहाँ बताया, वहाँ यूनिट्स कौन कौन से यूनिट्स होते हैं. मिलीमीटर होता है, मीटर होता है, फिर किलोमीटर होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर एंगस्ट्रॉम होता है, फिर फर्मी होता है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है और फिर लाइट ईयर होता है.
ये सारी लेंथ की यूनिट्स था। श्योर, क्लियर। उसी टाइप से मास में भी हमको बताना है कि जो अब सबसे छोटा मास है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मास ऑफ योर हेयर, आप बोलोगे 20 किलो, लोगों को ओड लगेगा। आप बोलोगे 10⁻⁻20 kg, ओके, लिखने में आप वही लिखना है, पर बोलने में थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा, इसलिए हमने बोला एटॉमिक मास जो कि आंखों से नहीं दिखता है, यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सबका पर नहीं दिख रहा है, तो उसका मास हमने मेजर कर लिया और वो आया 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ये जो 1 यूनिट आ रहा है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ये हमने किससे पता किया? ये एक डिवाइस यूज किया जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आई रिपीट, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एंड फ्रॉम हियर वी कम्स टू नो दैट द वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको फुल फॉर्म में AMU बोलते हैं, लेकिन आजकल उसको भी शॉर्ट बोल दिया। जैसे पहले पिताजी बोलते थे, फिर पापा बोलने लगे, अब बेचारे पिताजी को डेड कर दिया। तो ऐसे जैसे ज़माना बदलता है, तो पहले इसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट में लिखते थे AMU, अब उसको भी शॉर्ट कर दिया 1U, दैट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और मैं आपको बता दूं, आगे जाके आप पढ़ोगे, दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, दिस वैल्यू इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ऑल्सो मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन यही है। तो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एक्चुअली जब हमने कार्बन का 12th पार्ट है, कार्बन के एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट जो है वो आपका AMU। तो हमने सबसे पहले पता किया, मास का इंट्रोडक्शन दिया फिजिक्स, क्योंकि हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, अभी रोज रोज तो ये करेंगे नहीं। तो मेजरमेंट ऑफ मास में हमने बताया कि फिजिक्स में यहाँ से यहाँ तक मास मेजर किया जाता है। अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, और मास ऑफ यूनिवर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, उसका जो है यहाँ पे मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट। फिर हमने कुछ किया कि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ संस्थाएं हैं जो ये टेक केयर करती है, इस बात को देखती है कि सब बराबर चल रहा है कि नहीं, पूरी दुनिया में जो व्यापार हो रहा है, लोग कहीं चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए 2 संस्थाएं, इंटरनेशनली जो संस्था है वो हमने बात कर लिया, और जो नेशनल संस्था है उसकी भी हमने बात कर ली। अब हमने बात किया, कैटेगराइज किया, नाउ वी आर कैटेगराइजिंग द मास। जब हमने कैटेगराइज किया मास को, तो सबसे पहले बोला सबसे छोटा मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो वी कम्स टू नो दैट कि ऐसे मासेस को मेजर करने के लिए हमको स्पेक्ट्रोग्राफ करना पड़ता है, या मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करना पड़ता है, और उससे जो मास आया उसने ये वैल्यू दिया, इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। मतलब जो सबसे छोटे मास होते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दुनिया के, उनका मास जो आंखों से नहीं दिखते, उनका मास हम AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। अब आता है कॉमन चीज़ें मतलब आंखों से दिखने वाली, which can be seen by naked eyes। जो हमारी आंखों से दिखता है उसको हम तराजू से तोलते हैं, सही बात। अब तराजू भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। किराने की दुकान पे अलग तराजू होती है, फिर ये ट्रक आके खड़ा हो जाता है, ओके, जकात नाका, वो वहाँ पे धर्म कांटा सोशल सर्कल पे है, वहाँ पे ट्रक खड़ी हो जाती है, उसको मेजर कर लेते हैं, है ना। फिर ये आपका चेक पोस्ट आता है, तो वहाँ पे भी मेजर करते हैं कितना वजन लेके जा रहा है। तो ये सब बैलेंस, ये सब कॉमन बैलेंस, मतलब जो आंखों से दिखने वाली चीज़ है, ये आंखों से नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है, ये दिखता है, इसलिए इसको बैलेंस को हम लोग साधारण भाषा में तराजू के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा वजन होता है उससे इसके आपसे तराजू की बात चलती है, ठीक है। तो सोना चांदी हुआ, वो भी तराजू में आता है, उनके पास छोटा मोटा तराजू होता है। सब्जी वाला अलग तराजू रखता है, चक्की वाला बड़ी तराजू रखता है, लकड़ी बेचने वाला अलग तराजू रखता है, गेहूँ बेचने वाला बड़ी तराजू रखता है। तो ये सब तराजू है। तो मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं उनके मास को हम लोग तराजू में मेजर करते हैं। अब आप सोचो इससे मेरे को पढ़कर क्या फ़ायदा? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं वापस वही बोलूँगा, आपको फ़ायदा थोड़ी है, यहाँ पे नॉलेज चाहिए, नॉलेज। तो ये हो गया। तो जो
मीडियम लेवल की वस्तुएं जो बिल्कुल नहीं दिखता उसको हम ऐसे मेजर करते हैं, जो दिखता है उसको ऐसे मेजर करते हैं। क्या नहीं दिखता? दो चीज हमको नहीं दिखती, एक जो सबसे छोटी चीज है वो हमको नहीं दिखती, एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो नहीं दिखती। सबसे बड़े में कौन आ गया? प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली हमको नहीं दिखती, जो दिखती नहीं है तो उसका मास कैसे मेजर करेंगे? तो हमने एक रास्ता निकाल लिया, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बाय यूजिंग द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ we measure the mass of heavily objects. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलिए आप, हेवीली ऑब्जेक्ट्स बोलिए, तो दुनिया में तीन टाइप का कैटेगराइज हमने किया। When we talk about the measurement of mass, we can only talk about the three categories. The things which cannot be seen by our naked eyes, that is measured by the mass spectrograph, and the SI unit which is used, that is called atomic mass unit. Normal things, normal objects which we see around us can be measured by common balance, okay, which we use in our day to day life. They all can be measured by balance, that is tarazu. The large masses like heavily objects like celestial objects, which is the part of another world, in which we put the planets, stars, asteroids, satellites, etc., is measured there. If you want to measure their masses of celestial objects, of heavily objects, we prefer the gravitational, Newton's gravitational force or the law. Or already I have mentioned you the range, so you must knowing only about one three things. It comes there, write a short note on measurement of mass. So you have to mention this all, in which everything should be clear. In physics, order what is mass of electron to mass of this, SI unit, BI, MP, NPL. This is short note. So if suppose a question comes, write a short note on measurement of mass, write a short note on measurement of length, then definitely if you are not writing this all, means you are not getting the marks. If you are writing this all, then you are getting the marks. Okay? Yes. Now my dear students, बच्चों, lastly we are going to come to know about the measurement of time, that is only 1 second discussion. So far we have discussed briefly or detailed about three fundamental physical quantities: length, mass and time. तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं, मास कैसे मेजर करेंगे, और ये सब नॉलेज आपके पास ओरली होना चाहिए बच्चों। इसमें कोई रट्टे जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आता है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को हम वाइब्रेशन से मेजर करते हैं बच्चों। सो उसके लिए हमारे पास सीजियम का एक क्लॉक होता है। सबसे पहले जो टाइम को मेजर किया गया था, सीजियम क्लॉक के वाइब्रेशंस नोट किए गए। सीजियम एक मेटल होती है, तो उससे जब हमने 9192 9192 631 9192 631 770। इट सीम्स टू बी लाइक अ मोबाइल नंबर। यस, बिल्कुल सही बात है। आज आपको इस फॉर्म में ये 10 है। देखो कितना कॉमन चीज़ क्या है, बताओ। ये आज से सालों पहले, मीन्स बिफोर मेनी ईयर्स, सीजियम 133 एटम was allowed to vibrate, and when the cesium 133 atom completed this many vibrations, that was taken time equals to 1 second। दुनिया में सबसे पहले 1 सेकेंड को डिसाइड किया यहाँ पर। आज आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि इस तरीके से हमने टाइम को डिसाइड किया था, ओके, उसी टाइप से आज हमारा ये मोबाइल नंबर्स इसी में हो। मोबाइल नंबर आज भी 10 डिजिट्स का ही आ रहा है। सो ये कोइंसिडेंस इट कैन बी सेड। नाउ इट इज ओके, आई हैव डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम डिस्कवरी। नाउ वी आर मूविंग टू द
नेक्स्ट थिंग दैट इज योर इसके पहले हमने बात कर लिया कि वी हैव स्टडीड अबाउट एरर्स। एरर्स में हमने पढ़ा उसका टाइप। तो वी हैव स्टडीड अबाउट एरर्स। एरर्स में हमने पढ़ा उसका टाइप, फिर हमने पढ़ा उसका एस्टिमेशन। These two we have done. Today I am going to explain you the combination. So we have done the errors, estimation and type of errors. For easily you can understand it. So in estimation we saw that there are three types of error. Very first came mean error, then came absolute error, absolute error came, that was like this, delta A equals to 2. Okay, then I discussed absolute average error. Then we will be talking about fractional error. So when you talk about the estimation of error, you must knowing about this. This is your delta A mean. This is your A mean. This is your delta A. AI minus A mean, where I equals to 1, 2, 3 and up to n. So today we will be talking about, we are going to talking about further this thing only in detail. ओके तो एक बार फिर से मैं आपको वापस याद दिला दूंगा सब। ओके, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Suppose there is a E is a physical quantity and A1 means first reading, A2 means second reading, A3 means third reading, N means last reading. So this is your last reading. This is your third reading. This is your second reading. This is your first reading. Suppose you took so many readings. Now to estimation, start the estimation. Very first you will take their average or mean. For that you will write about A mean equals to A1 plus A2 plus A3 plus AN divided by N, or A mean equals to summation I equals to 1 to N AI by N. This is ओके बच्चों, पहला आ गया, पहला आ गया, यस इट्स अ फर्स्ट रिजल्ट। तो पहला आ गया हमारा एवरेज मीन।
व्हाट यू आर लर्निंग अबाउट एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, मीन्स एरर का पता चलने के बाद उनको किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। हम एवरेज एरर निकाल सकते हैं, इसको एवरेज एरर भी बोल सकते हैं आप, मीन एरर भी बोल सकते हैं। एवरेज और एरर आर सिनोनिम्स। इसके बाद आता है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस जो वैल्यू आया है ए मीन, इट इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है तो इसी को आपको ट्रू वैल्यू मानना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो रीडिंग्स हमने लिया उन सब से इसका माइनस निकालेंगे और उस डिफरेंस का फिर अपन क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो वहाँ से जो आएगा उसको हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, अब आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये वाला सिंबल, मैंने पहले भी बताया, जिसको आप मॉडुलस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मॉडुलस का यूज हो, तो क्या करना है, इसी को कंटिन्यू करना है आपको। तो सब में से माइनस कर दो। तो सबसे पहले आप लिखो A1, A2, A3, AN, फिर माइनस आप लिखो A मीन माइनस A मीन, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे डेल्टा A1। क्यों डेल्टा? डेल्टा का मतलब हो गया डिफरेंस, दैट जो आपका रीडिंग है और जो आपका ट्रू वैल्यू माना है आपने, ये सही वैल्यू हो गया। मान लो यही ओरिजिनल है, जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है तो इसी को ओरिजिनल वैल्यू हम ले लें, मतलब यही आंसर सही माना जाता है कि ये आंसर, पर तुम्हारी रीडिंग्स में आंसर नहीं आ रहा था। तो पहला जो तुम्हारा रीडिंग है, इसको समझो, सपोज पहला रीडिंग तुम्हारा आया 3.2120 और एक्चुअल वैल्यू है 3, तो तुम्हारा पहला डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा A1 हो गया तुम्हारा पास 0.20। समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा समझो, इसको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग आया था, एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज पहला रीडिंग आया 3.20 और ओरिजिनल A मीन कितना है तुम्हारा, इसी को ओरिजिनल बोलेंगे 3। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आया पहला रीडिंग का ओरिजिनल से, मतलब तुम कितने आगे पीछे एरर कर रहे हो। आना चाहिए 3, तुम्हारा आ रहा है 3.20, मतलब तुम्हारा एरर कितना हुआ 0.20। अब अगर मान लो ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का, अगर तुम्हारा 2.80 आता तो भी तुम्हारा एरर 0.20 आ रहा है, लेकिन इस टाइम माइनस का आ रहा है। तो यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हमको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं। और जब मॉडुलस लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब कोई टेंशन मत लेना, अब मैंने पूरा बता दिया है आपको। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रीडिंग्स हमने लिया है उन सबका ओरिजिनल से अंतर पता करेंगे, और उस अंतर को अगर नेगेटिव पॉजिटिव का चांस हो सकता है तो हम रिस्क नहीं लेंगे और उसको हमेशा पॉजिटिव बना लेंगे, और पॉजिटिव बनाने के चक्कर में उसको मॉडुलस लगा देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे उसको बता देता हूँ मैं आपको। आप बोल रहे हैं फिजिक्स में कुछ रट्टा नहीं है मेरे पास, आपको जो भी मिलेगा पूरा दिमाग से सीखने को मिलेगा, वेलकम। अब इसका एवरेज जब हम लेने जाएंगे, अभी हमारा इसका एवरेज लेना है, इसके एवरेज को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ए मीन। इसका मतलब पहले वाले में अंतर कितना था, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन n, ये हो गया हमारा। ये जो आपके पास आया दिस इज, ये तो है एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं, इसका नाम है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि तो एवरेज आ गया ना भाई। तो ये जो वैल्यू है इसको बोला जाता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। So this is your average absolute error, where this is only absolute error. Please try to understand the difference. Absolute error is this. This is the first absolute error. Means difference of first reading to the original value. First absolute error, second absolute error, third absolute error. But average absolute error is only one. Absolute error can be many because you have as many readings you have taken. These are the readings. In short, we can say these are the readings.
जो रीडिंग्स होती है बच्चों उन्हीं से, भाई रीडिंग्स लिए आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, रीडिंग्स लिए आप, तो आपका काम शुरू हो गया ना। फिर बच्चों एवरेज हमारे पास 2 एस्टिमेशन ऑफ एरर्स मैंने बता दिया, इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टू